So before coming to next topic, I mean, let us do more questions on this one, and I want to recall one of the important result which I discussed, I think. Okay, so this one was the definition here, that a function f from J to R is uniformly continuous on J if for each epsilon greater than 0 there exists delta such that whenever x1 is close to x2, fx1 is close to fx2. So the first property we have observed here is that if f and g are uniformly continuous and bounded, then f into g is always uniformly continuous. Okay, so there is a counter example that if you drop this boundedness condition, then if a product of two uniformly continuous function need not be uniformly continuous always. And next result, if you look at the next result, see here this one is another important result, derivative that if derivative of a function, obviously derivative is there, so there is no need to say continuous. So if derivative of a function is bounded on a given interval, then this implies it is uniformly continuous. But if derivative is not bounded, then we can't say about uniformly continuous. We need to apply other tests. So I discuss some other cases, and here this one is a very important result. We already know that continuous plus periodic function, if a function is continuous as well as periodic, then it will be uniformly continuous. And these two results, fifth and sixth, when on open interval, these two are very important result from objective point of view, that whenever your interval is finite length interval, in fact let me write it again. Whenever your interval is finite length interval and is open and function is continuous, then f is uniformly continuous if and only if limit extending to a plus fx and limit extending to b minus fx exist finitely. But if this is an unbounded interval and if limit at endpoint exists, then we will say that function is uniformly continuous. But on unbounded interval, if limit does not exist at any one of the endpoints or both of the endpoints, then we need to apply other test. I mean, we cannot interpret from here that function is uniformly continuous. So these two results are given on page number, actually this is given on page number 176. And let me refer the book. This one is from the book S.C. Malik, S.C. Malik and Savita Arora. So there you will find the detail here. But I based on this, because due to this if and only if condition, it's very easy to check for objective exam that whether a given function on open interval, whenever open interval is given, apply this test. So that result is basically this one. Let me write. So if f is continuous, listen here. If f is continuous on bounded open interval, continuous on bounded, let me add here bounded open interval. If f is continuous on bounded open interval AB, then show that if a function will be uniformly continuous if and only if limit at both endpoints exist finitely. Okay, and the next is that if f is continuous on any if f is continuous on interval of this type, on unbounded interval, say a to infinity or alpha to infinity or minus infinity to beta, or in fact r, a to infinity. So if limit exists finitely, then we will say that function is uniformly continuous. So counter example to this one, we have already seen. We have seen several cases in which limit at endpoint may not exist, but function is even uniformly continuous. So for that, one more important thing is here, that this is for the interval a to infinity, alpha to infinity, say minus infinity to b. This one is basically for this type of interval, a to infinity, or minus infinity, sorry, open interval minus infinity to b, or you can even take closed interval here, no matter, it will also be, if function is continuous there. In fact, let me write on clearly here because it may create confusion. How to minimize this? Yes. सर 5 और 6 नंबर जो प्रॉपर्टी है दोनों तो सेम ही है ना सर?
नहीं नहीं, फर्क है, एक में इफ एंड ओनली इफ है और ये दूसरे में कन्वर्स ट्रू नहीं है, यही तो मैं समझा रहा हूँ। एक मिनट, इसको जरा, ये कौन सा था, ठीक, चलो इसे मिनिमाइज करने का होता है, मैं वहां देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन, वन नोट दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक, एक मिनट, यहाँ पे ऐसा काम करते हैं। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्यों ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए दोनों का रोल है। बल्कि मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपको स्टेटमेंट और क्लियर हो जाए, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने ठीक से लिखा नहीं है यहाँ पे। पहला तो ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैंने इसलिए रेफरेंस बुक भी बता दिया, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव में देखो, अभी मैं नेट के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करूंगा, तो वहां आप देखोगे कि कितना कितना यूजफुल रिजल्ट है ये ऑब्जेक्टिव पर्पस की। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में प्रूफ वगैरह सब आइडिया आपको दे दिया है, लेकिन अब क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो हर एक चीज का एक आइडिया देंगे, बहुत ज्यादा उसकी डिटेल नहीं जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने पे मेरा यहाँ ज्यादा फोकस है ना। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट मी रीराइट दिस स्टेटमेंट सी दिस वन। It says that if f is continuous, on unbounded interval, this or this then and limit extending to infinity f of x, or limit extending to minus infinity f of x exists, then f is uniformly continuous. But remember here, converse is not true, then f is uniformly continuous. Converse need not be true. Converse need not be true. Even I have discussed an example here. So see, on bounded open interval, converse is always true. There is if and only, but on unbounded interval, obviously function is continuous and closed interval is included, so there is no need to talk of limit here, because already continuous, so limit will exist. Only I need to check at infinity and minus infinity. So if limit exists, then function is uniformly continuous, but if limit does not exist, then we can't say anything. I mean, we need to apply other, it may or may not be uniformly continuous. So for that, let me recall one of the result here. Look at sin 1 by x. See, whenever open interval is given to us, and this is of finite length, its length is 1, so directly apply that limit test. I mean limit concept for uniform continuity. So see, okay, how to show that limit does not exist here? Actually, I directly wrote here, because I thought that all these things we have discussed. I mean, we have studied in +2, but using sequential approach, one can also do. How to show that limit extending to 0 sin 1 by x does not exist? कोई बताएगा? Limit extending to 0 sin 1 by x does not exist. Sequential approach से पढ़ा है ये तो? अच्छा, बीएससी के जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको मैंने कराया था क्लास में, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। सीक्वेंशियल अप्रोच से प्रूफ होगा, या फिर आप सीरीज एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, या जो +2 में मेथड पढ़ा है एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 0 माइनस, वहां से चेक कर लो। एनीवे, मैं इस पे आता हूँ कैसे इसकी लिमिट चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि अगर ये जैसे किसी एक के अगर बाउंडेड लेंथ इंटरवल है और किसी एक पॉइंट पे भी लिमिट फेल कर गया, तो आप डायरेक्टली कह दोगे कि sin 1 by x is not uniformly continuous. sin 1 by x is not uniformly continuous. So answer is no, not uniformly continuous, not UC. Why? Which result? Using, because here length is of finite and open. So whenever open bounded interval is there and limit at any of the endpoint or both of the endpoints does not exist, then function will never be uniformly continuous. So same again here,
Now here this function, because when you start taking limit, this 0 into a finite number will make it 0. So limit is, we are getting finite limit. So this is the reason why not only this, in fact, x to the power alpha sine 1 by x to the power beta, bounded interval, on any bounded interval, sorry, on this interval, open interval 0, 1, if alpha is greater than 0, then this number is going to be lie in between -1 to 1. -1 less than equal to sine 1 by x to the power beta is less than equal to 1. So this one is finite, and this one 0 into finite will make it 0. 0 into finite will make it 0. So again, you will get finite limit. And at 1, it is clearly defined. Limit is already there. So this is the reason why for every alpha greater than 0, independent of beta, whatever be alpha, if alpha is greater than 0, then 0 into finite, it will make it 0. 0 into any defined quantity is always 0. You know. So using this, limit exists finitely, and since it is of finite length interval, therefore function is going to be uniformly continuous. ये point clear हुआ? Doubt तो नहीं यहाँ पे किसी को? मैं भी recall करा रहा हूँ जो last class में किया था. देखिए पढ़ने को इस तरह पढ़ें कि एक टॉपिक कर लिया तो उसके क्वेश्चन हमेशा हो जाए एग्जाम में, ठीक है ना? तो कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं, वो आपको आना चाहिए, और कुछ रिजल्ट कैसे अप्लाई करना है. वैसे तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी आपको उस तरह से बता दिया, डेफिनेशन यूज करें, कैसे एस्टिमेट करेंगे fx1 माइनस fx2. लेकिन अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करें. ठीक है, अगले रिजल्ट पे चलते हैं. अब यहाँ देखो, x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, अगेन सेम x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स. So limit at both point, limit at 0 as well as at this endpoint 0 as well as 1 exist, and this one is open and bounded length interval. So this is the reason why this function is uniformly continuous. So in general, whatever, whenever alpha is greater than 0, then we will say that this function is either it is x to the power alpha sine 1 by x to the power beta, or x to the power alpha cos 1 by x to the power beta on open interval 0, 1. Function will be uniformly continuous. Function will be uniformly continuous. Okay. Reason I told you. Here again, so this is already written here. Now you can see here that fx equal to x. So from here you can't conclude anything. You need to apply some other test. For example, fx equal to x on minus infinity to infinity. So you can see that limit at endpoints not exist. So we cannot interpret anything from here. I need to apply other test. But if you look at its derivative test, then derivative is bounded. Derivative of this function f dash x is less than equal to 1. F dash x equal to 1. So clearly derivative is bounded, hence function is uniformly continuous. However, here we cannot apply derivative test. Sorry, that concept, I mean limit concept. ठीक है ना? ये क्लियर हुआ कि नहीं कि लिमिट कॉन्सेप्ट को हर जगह अप्लाई नहीं, और लिमिट कॉन्सेप्ट हुआ या डेरिवेटिव टेस्ट जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए है. बेसिकली इफ दे होल्ड्स देन इट्स ओके, इफ दे आर नॉट होल्डिंग then function even may be uniformly continuous and you need to apply some other test. तो ये पॉइंट जो बता रहा हूँ इससे समझ ले, वरना अक्सर तो देखो यहाँ fx इक्वल टू x था, उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो फंक्शन तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही. इन चीजों को इन एग्जांपल की हेल्प से tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर और बाउंडेड है. दिख रहा है ग्राफ यहाँ पे क्लियरली, π/2 और -π/2 के बीच में इनक्लोज है. रेंज देखो, किसी फंक्शन को बाउंडेड कब कहते हो? जब उसका रेंज सेट बाउंडेड हो. सो क्लियरली डेरिवेटिव इज बाउंडेड एंड हेंस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस. तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए पहले फंक्शन को कंटिन्यूअस तो होना ही, उसके बाद बात करते हैं. कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो वही डिस्कार्ड हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है. Now look at root x on open interval 0 to infinity. Again, this is of the type 0 to infinity. So what will happen here, that check limit at 0 and infinity. So clearly at 0 limit is finite, but at infinity limit is not finite. So we cannot interpret anything from the limit concept. So better to break it into this to 0, 1 into 1 to infinity. Now in this interval, clearly limit at 0 as well as limit at 1 both exist finitely. 0 पे कितना हो जाएगा? अंडर रूट x 0 हो गया, 0 प्लस h पे h टेंडिंग टू 0, और 1 माइनस h पे h को जब 0
टेंड करोगे तो ये 1 हो गया, तो वो दोनों पॉइंट एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ 1 टू इन्फिनिटी में देखो, इसमें डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो, डेरिवेटिव टेस्ट ऑलवेज बाउंडेड होगा, रीजन आपको बताया क्यों बाउंडेड होगा, 1/2 रूट एक्स ऑन 1 टू इन्फिनिटी, सो इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन देयर यूनियन। ठीक है ना, तो कोई भी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो कब वैलिड है ये समझना जरूरी। उसी तरह हमने यहाँ 0 to 1 कर लिया, 1 to इन्फिनिटी कर लिया sin root x, so sin root x 0 to 1, this one is uniformly continuous because we have the compact domain. Here you can, okay, one I have included here, so you can make it here open interval 1 to infinity, no problem. And you can now check its derivative on 1 to infinity. So on 1 to infinity its derivative is bounded by half. So since on this interval its derivative is bounded, and we know that any continuous function on compact domain, I mean on any closed and bounded domain, is going to be uniformly continuous. So again it will be continuous on their union, uniformly continuous on their union. So this we have already discussed. Again sin x square we need to check on minus infinity to infinity. Now look at end point sin x tending to infinity, solving limit at x tending to infinity or solving limit at y tending to 0, both are same. So you can see that limit y tending to 0 sin 1 by y square does not exist. I will explain it why it does not exist, but this is a well-known result. Either you can use series expansion and just look at the result limit at 0 in the neighborhood of 0, or you can use the sequential approach. So those who have not studied in graduation, just after a few minutes I will explain how to show that a limit does not exist for sin 1 by x or sin 1 by x square where extending to 0. So better to discard it using sequential approach. But from derivative test, look at from the derivative test. See, this test fails here. I mean the limit test is not applicable here because limit test demands that if limit exists at end point finitely, then function will be uniformly continuous. But if not, then we can't say. I mean function can be uniformly continuous or cannot be uniformly continuous. So for that we need to discard, we need to apply this sequential approach. So I discussed how to choose this sequence a and b n such that their difference is tending to 0, but the estimate f of n minus f of bn cannot be further made less than 1. I mean if you choose epsilon equal to half, then fn minus bn will be never less than 1 for whatever x1 x2 you are choosing from the domain. So this is the reason why this function is not uniformly continuous. So using sequential approach, this is always used to discard. And the next result is, see, these are the some functions. I will commit later on. Let us do something new. तो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप पार्टिसिपेट खुद करें, जो आप लोगों को लगता है बताएं, फिर मैं आंसर में करेक्शन कराऊंगा। क्योंकि देखो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, कुछ न करने से तो कुछ बेहतर होता है ना। वो तो नोट्स बुक्स सब कुछ है, लेकिन जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे ना तो क्या होगा, कंपटीशन का सबसे आसान तरीका है कि आप क्वेश्चंस पे डिस्कशन करें, इसी पे निकल जाता है, कोई अलग से तैयारी नहीं चाहिए होती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, डिस्कशन में गलतियां मिनिमाइज हो जाती है और वही सिलेक्शन का की क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का। बाकी पढ़ने को तो आप चाहे जितना पढ़ लो, बहुत से लोग होते पढ़ते रहते नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते जो स्ट्रेटजीज चलते हैं वो जल्दी आसानी से बीट कर जाते हैं। हालांकि ये सबसे आसान एग्जाम है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें थोड़ा सा पहले मैं सीक्वेंशियल अप्रोच बता के फिर मैं आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है वो बता देता हूं। तो इसमें जस्ट एक, तो सीक्वेंशियल अप्रोच के, हालांकि मैं जब कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा तो वहां सीक्वेंशियल अप्रोच डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ये टॉपिक है, और उससे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे कुछ क्वेश्चंस और मैं करा दूं। तो उससे पहले ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट, एक तो आपने +2 में पढ़ा है कि कैसे
लिमिट निकालते हैं, और एक अब क्योंकि रियल पढ़ लिया है तो वो एनालिसिस वाला मेथड यूज करते हैं, आई मीन सीक्वेंशियल अप्रोच यूज करते हैं. सो इट सेज दैट actually here basically this one is used to show that limit does not exist. So what is the criteria for non-existence of limit? Non-existence of limit. So it says that if we have sequences say an and bn, an is converging to a, okay, and bn is converging to a. Suppose we are interested in finding limit at a. So choose two sequences a and bn such that both are converging to a. I mean the members of the sequence are different from a. Members of the sequence are different from a, and show that but the limit of function at an and limit of function at bn. Limit means limit tending to infinity. In short, I am saying limit. Both are different. Converges to some other, say L and L dash, where L is not equal to L dash. I mean, so if you, so you can, but if we have any two sequences an and bn such that they are converging to a, but value of function at that points, their limit are different, then we say that limit extending to a, fx does not exist. Does not exist. So to show that, best way is to for example show that limit extending to 0 sin 1 by x does not exist. एक तो देखो आप sin 1 by x का आप जानते हो sin x का एक्सपेंशन क्या होता है, x minus x cube by factorial 3 plus x to the power 5 by factorial 5 and so on, है ना. तो उससे एक तो आ जाएगा कि sin 1 by x का कितना हो जाएगा, 1 by x minus 1 by x whole cube into factorial 3 and so on. तो जब लिमिट देखोगे ना आप, ये जो टर्म है 1 by x का, इसका लिमिट 0 या 0 प्लस और 0 माइनस पे, तो आपको देखोगे एक प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, एक माइनस इन्फिनिटी. तो ये तो आप प्लस 2 में ये सब चीजें तो पढ़े हुए. अब क्वेश्चन है कि अगर सीक्वेंशियल अप्रोच से करना हो तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें. तो आपको अब लिमिट किस पे चेक करना है, 0 पे. सो टेल मी एनी टू सीक्वेंसेस व्हिच आर कन्वर्जिंग टू 0 but at which the values of sin 1 by x, their limit at those points, I mean those sequences of this function sin 1 by x takes to different values. तो ये तो बहुत आसान है, इस तरह के कैसे पहचानेंगे. तो sin 1 by x का बेसिक जो ग्राफ होता है ना sin 1 by x का, वो 0 के नेबरहुड में ऑक्सीलेटिंग होता है. 0 पे तो डिफाइंड नहीं होता, लेकिन 0 के नेबरहुड में देखोगे तो -1 से 1 के बीच में ये ऑक्सीलेट करता है. तो करते क्या है कि अब जैसे अगर साइन, आप अगर sin x का सिंपली ग्राफ बनाओ, sin x का ग्राफ वैसे तो ये बहुत तेजी से sin 1 by x तो बहुत तेजी से ऑक्सीलेट करता है, ये -1 और 1 के बीच में ये ऑक्सीलेट करता है, इसके दोनों एंड ऑक्सीलेट करता है. तो कुछ पॉइंट्स होगा जिस पे ये वैल्यू 1 ले रहा होगा, और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिस पे ये वैल्यू 0 ले रहा होगा. तो आप वो सीक्वेंसेस चूज करो, और सीक्वेंस इस तरह होना चाहिए उनकी लिमिट पहले 0 जाना चाहिए. आई मीन चूज a and bn such that their values is tending to 0. So one can choose say xn is equal to 1 by, और रेसिप्रोकल में है तो ऐसा लो जिसपे वैल्यू आसान हो 1 by 2n pi, and choose yn is equal to 1 by, नेक्स्ट pi by 2 पे चेंज होगा तो 1 by 2n pi प्लस pi by 2. अब देखो ये भी सीक्वेंस n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0. तो जो पहला कंडीशन है कि जो भी आप सीक्वेंस an bn या xn yn चूज करें उनकी लिमिट किसकी जानी चाहिए, उसी पे जिस पे आपको लिमिट चेक करनी है. तो हमने ऐसा दो सीक्वेंस लिया जहां पे 1 by 2n pi और 1 by 2n pi plus pi by 2, इन दोनों की लिमिट 0 पे जा रही है. नाउ लुक एट द वैल्यू ऑफ फंक्शन f of xn and f of yn, limit and tends to infinity. So both are converging to 0, but f of xn क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू sin 2n pi कितना हो जाएगा यहाँ से, f of xn 1/2n pi है ना, तो sin 1/2n pi और रेसिप्रोकल तो 2n pi हो गया.
तो साइन 2n पाई इट्स लिमिट 2 पाई का मल्टीपल क्या हो जाता है, ये 0 हो गया। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पीरियोडिसिटीज के 2n पाई है, तो साइन ऑफ x प्लस टी, इफ टी इज पीरियोडिसिटी 2 पाई का मल्टीपल पीरियोडिसिटी होता है, ये साइन बाई 2 के इक्वल हो गया, साइन पाई बाई 2, और ये कितना हो गया 1। ठीक है, साइन पाई बाई 2 हो गया तो कितना हो गया 1। तो आप देखो यहाँ लिमिट अलग अलग हो गई, 0 और 1 लिमिट क्या हो गया अलग अलग। आपने सीक्वेंस डिस्कार्ड करने के लिए आप दो ऐसे सीक्वेंस बताओ जिसकी लिमिट तो 0 को जा रही है लेकिन उसके फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो गई, तो दिस शोज दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तरीका होता है कि लिमिट, यही सेम वर्क रूल करेगा cos 1 by x के लिए। द ओनली डिफरेंस इज दैट देयर यू नीड टू just look at the graph of cos x and just change the points। ठीक है ना, और कोई इसमें अलग चीज नहीं है, तो उसको भी आप कर सकते हो। तो कैसे शो करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos 1 by x डज नॉट, अब मैंने वहां पे डायरेक्ट लिख दिया था लेकिन इसका बेसिकली एक्सप्लेनेशन ये है, तो कैसे इसको लिखेंगे कोई मत, अच्छा आप एक काम करो, ये बताओ कि ये रेसिप्रोकल में है, तो cos x की वैल्यू ऐसा ले लो जिसपे एक पे 1 जा रही हो वैल्यूज और एक पे 0 जा रही है, तो आप ऐसे देख के cos x का ग्राफ देख के चूज कर सकते हो पॉइंट्स, मतलब सीक्वेंस किस तरह का होना चाहिए। cos n पाई कितना होता है, डिपेंड करता है n पे ना, cos पाई -1 cos 2 पाई 1 cos पाई, cos का अगर ग्राफ देखो आप, cos का ग्राफ देखो तो cos का ग्राफ कैसा होता है, 0 से, यहाँ तो खैर cos 1 by x है लेकिन अगर cos का ग्राफ देखो तो ये 0 पे 1 होता है, फिर कहाँ पे, और यहाँ पे देखो पाई पे कितना होता है, सॉरी ये तो पाई हो गया पाई बाई 2, पाई पे -1 यहाँ -1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पाई के मल्टीपल पे या तो ये वैल्यू 1 ले रहा है या -1, या तो ये वैल्यू 1 ले रहा है या -1, फिर इसे आगे एक्सटेंड कर दो, तो पाई के मल्टीपल पे क्या ले रहा है ये वैल्यू, या तो ये पाई के मल्टीपल पे 1 ले रहा है या -1 ले रहा है, तो इसका मतलब n पाई पे इसकी वैल्यूज क्या आएगी 1 और -1। तो आप ऐसे दो सीक्वेंस बताओ जो पहले 0 को जाना चाहिए, और दूसरा सीक्वेंस आप इस तरह चूज करो कि उसकी वैल्यू 1 या -1 से अलग आ जाए, या -1 टू दी पावर n भी, हालांकि वहां से भी डिफरेंट मिल रहा है वो भी ले सकते थे, एक ही यही वर्क कर जाएगा। एक आप ऐसे सीक्वेंस लो ना, ये पॉइंट जिसपे इसकी वैल्यू 1 जा रही है, एक वो सीक्वेंस बनाओ ये जिसपे वैल्यू 1, यहाँ पे ये वैल्यू 1 आ रही है, एक वो ले लो, और वो जो सीक्वेंस आप चूज करो वो 0 को जाना चाहिए, और एक ये वाले ले लो, ये जो नीचे आ रहे हैं, हाँ ये जो नीचे आ रहे हैं, तो इन पे वैल्यूज की क्या मिल जाएगी, इन सब पे वैल्यूज -1 मिलेगी। तो यहाँ से ग्राफ से दिख गया, नाउ वन कैन सेलेक्ट xn इज इक्वल टू 1 अपॉन n पाई। रेसिप्रोकल में क्यों लिया, क्योंकि cos ऑफ 1 by x है, cos ऑफ 1 by x है, ये ग्राफ मैंने जो बनाया cos x का ग्राफ है, cos 1 by x का नहीं है। cos 1 by x का तो ये 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं होता ना, 0 के नेबरहुड में ये ऑक्सीलेट करता है, 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है ये, ठीक है, ये समझाने के लिए होता है। तो ये देखो 0 टेंड कर रहा है n पाई के मल्टीपल पे, और 1 by n पाई 0 नहीं है, यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या कहता था, 1 by n पाई 0 नहीं है, अगर आप पहले से यहाँ पे देखो, यहाँ a n b n ऐसा लेना, लेकिन सीक्वेंस के टर्म a उसके इक्वल नहीं होने चाहिए, तो आपने ये 1 by n पाई देखो, नन ऑफ द टर्म इज गोइंग टू बी 0। नाउ लुक एट द वैल्यूज, फंक्शन की वैल्यू 1 by n पाई पे देखो, तो ये 1 भी वैल्यू लेगा -1 भी, आई मीन ये क्या मिल गया, cos n पाई, cos n पाई, ये क्या हो गया, -1 टू द पावर n इज टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज। Hence limit x tending to 0 cos of 1 by x does not exist। ठीक है, तो आप ऐसे और भी आप चाहो तो यहाँ पे, जैसे इससे पहले वाला मैंने क्वेश्चन कराया था, जैसे यहाँ पे ये दिया था ना, शो दैट लिमिट sin 1 by x does not exist, कोई और सीक्वेंस इसमें बताएगा, कोई और कोई सीक्वेंस, इस तरह क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेंगे। अब जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन उस दिन यहाँ लिख दिया था, मुझे लगता है मैंने किसी को, हाँ sin x स्क्वायर का मैंने यहाँ लिख दिया कि लिमिट
y टेंडिंग टू 0 sin 1 by y square डज नॉट एग्जिस्ट। तो वहां मैंने बोला नहीं था, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? कोई यहाँ बताएगा कोई मुझे सीक्वेंस? ऐसे दो सीक्वेंस बताओ, यहाँ लिमिट किस पे चेक करना है? 0 पे। तो आप ऐसे दो सीक्वेंस बताओ जिसकी लिमिट तो 0 जा रही है लेकिन sin 1 by y square की वैल्यू उस पे डिफरेंट हो जा रही है। बताएं कुछ सोच के, क्या क्या ले लूं मैं? हाँ, यस एनीवन? कुछ गेस करें फिर मैं बताता हूँ। कोई घबराने की बात नहीं है, आप खुद से बताएं, पार्टिसिपेट करें क्लास में, क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे तभी ना। क्योंकि रिवीजन करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होता। बाकी नोट्स और किताबें तो पढ़ी जाती है, जब जब डिस्कशन होता है ना तो उसमें जब पॉइंट कॉमन निकल के आते हैं तो वो बहुत लंबे वक्त तक आप उसमें ढले होते हैं, तो एग्जाम में फिर अलग से तैयारी की जरूरत नहीं होती। और आप ये सोचेंगे सारे नोट्स हैं और किताबें हैं और मैं पढ़ लूंगा, तो वो तो फिर पढ़ भी लेंगे तो जो डिस्कशन में जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, वो हो सकता है शायद ना हो। आप में से कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा कर जाते हैं, मैं ये नहीं कहता, पर फिर भी कंपटीशन का सबसे अच्छा तरीका आप ग्रुप बनाकर डिस्कशन करें, इससे अच्छा कोई वे नहीं है। तो साइन 1 by y स्क्वायर को हम कैसे प्रूफ करेंगे? यस एमएससी स्टूडेंट्स, वही तो बताया, कोई ऐसे दो सीक्वेंस बताओ जिसकी लिमिट वन बाई रूट n pi and एक तो one by देखो root स्क्वायर है, 2n यहाँ पे plus देखो 1 एक तो pi by स्क्वायर 2. है, वेरी गुड। एक तो स्क्वायर है तो क्या काम करेंगे? ऐसा लो कि जो कि जैसे साइन एन पाई साइन 2n पाई इन सब की वैल्यू आपको आसानी से नोन है, और एक रेसिप्रोकल में, एक तो आप रेसिप्रोकल में जाओ, या वही है कि 1 by y स्क्वायर को मान लो, जैसे आप 2n पाई लिख रहे हो तो वहां से 1 by y स्क्वायर आप मान लो, पूरा 1 by y स्क्वायर की वैल्यू 2n पाई है। 2n पाई, क्योंकि साइन 2n पाई में मालूम था 0, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा 1/2n पाई, तो y आ जाएगा। तो ये y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ मालूम चल गई कि आपको किस तरह का सीक्वेंस लेना है। तो y कितना हो गया? 1/√2n पाई, ये रूट में हो गया। तो ये आप सीक्वेंस ले लो, देखो इसकी लिमिट 0 जा रही है। पहले आपको 0 पे चेक करना, तो लिमिट 0 जाना चाहिए। तो 1/√2n पाई, ऐसे कुछ और ले लो, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू 2n पाई पे कितनी हो जाएगी? इस पे तो 0 चली गई, इस वाले पे f, ये अगर सीक्वेंस में yn ले लूं, yn स्क्वायर, क्योंकि n का फंक्शन है तो आप yn लिख दो। f ऑफ yn 1/√2n पाई पे ये sin 2n पाई हो गया। sin 2n पाई कितना होता है? 0। sin 2n पाई कितना हो गया? 0। अब आपको एक दूसरा सीक्वेंस लो जिसकी लिमिट 0 जा रही हो, लेकिन तो साइन जानते हो, पाई बाय 2 पे ग्राफ देखो तो पाई बाय 2 पे डिफर करता है ना? साइन एक्स की पीरियोडिसिटी जो होगी वो 2 पाई होती है। तो वैल्यूज जो होंगे, वैल्यूज जो होते हैं वो क्या हुआ? देखो पाई बाय 2 पे ये वैल्यू 1 ले रहा है, लेकिन अगर पाई एन पाई के मल्टीपल तो वैल्यू 0 हो रहा है। तो जब हमने ये सब पॉइंट्स कलेक्ट किए x1 x2 x3, उन सब पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? 0 आ गई। अब ये वाले पॉइंट कलेक्ट कर लो जिसपे वैल्यूज 1 है, एक ये मान लो y1 है, ये y2 है, सॉरी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये y, ये इसको y1 एज्यूम कर लो, इसको y2। तो ये पॉइंट सेलेक्ट करके अगर आपको सीक्वेंस बनाओगे तो इस पे वैल्यू दिख रहा है कि इस पे फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिल जाता है कि हम किस तरह का सीक्वेंस ले, ठीक है ना? तो अब बता सकते हैं क्या ले, जैसे ये 0 n पाई का मल्टीपल था, तो n पाई में पाई बाय 2 जोड़ दो तो यहाँ पे ये आ गया। क्लियर दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे √2n पाई लिया तो अगला पॉइंट क्या ले लें? xn को ले लो आप 1/√2n पाई प्लस पाई बाय 2। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f ऑफ xn क्या हो जाएगा? f ऑफ xn साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाय 2। अब 2 पाई तो पीरियोडिसिटी होती है, तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल पे वैल्यू क्या आ जाएगा? साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1। तो देखो आपने दो सीक्वेंस लिया, एक xn और एक yn, दोनों की लिमिट 0 जा रही है, ये भी लिमिट 0 जा रहा है, ये भी लिमिट, लेकिन फंक्शन की वैल्यू पे डिफरेंट हो गई। तो यहां से ये इंश्योर हो गया कि sin 1 by y square डज नॉट एग्जिस्ट। sin 1 by y square
or we can say that limit extending to infinity sin x square does not exist. तो मैंने उस दिन कर इसको डायरेक्ट लिख दिया था, हालांकि इसको आप चाहो तो जो प्लस 2 में आप मेथड पढ़ के आते हो लिमिट एट 0 चेक करने के लिए, तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की तो फंक्शन आगे कंटिन्यूअस ही नहीं होगा, और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के लिए तो पहले फंक्शन वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं एंड पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं खैर वो आपको ये चेक करना था कि लिमिट अगर एंड पॉइंट पे एग्जिस्ट कर जाती तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट, तो इस टेस्ट से कुछ नहीं कर सकते। सो यू नीड टू अप्लाई सम अदर टेस्ट, आई मीन लिमिट कॉन्सेप्ट टेस्ट इज नॉट अप्लीकेबल हियर। सो लुक एट द डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट में देखा तो फंक्शन आ गया cos of x स्क्वायर 2x, लेकिन x कहां से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसकी वजह से फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा, तो बाउंडेड वाला टेस्ट भी फेल हो गया। अब इन दोनों टेस्ट से मैं यहां से कुछ नहीं कह सकता। तो अब इसको डिस्कार्ड करने के लिए कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप सीक्वेंशियल अप्रोच यूज कर लें। सो चूज सीक्वेंसेस x and y n such that, or a n b n such that they are close but their difference, I mean estimate f of n minus f of bn cannot be made less than a fixed quantity or is not converging to zero। तो वो आपको मैंने बता दिया था कि कैसे सीक्वेंस चूज करेंगे। इसमें रेशनलाइज करेंगे तो देखेंगे इसकी लिमिट 0 जा रही है n माइनस bn की, लेकिन f of n माइनस bn 1 से फर्दर कम नहीं हो पाएगा। तो जैसे आप एप्सिलॉन को 1 से छोटा ले लो ना, तो ये कभी भी whatever x1 x2 you are choosing, however close it is, but fx1 minus fx2 or f of n minus f of bn cannot be made further less than this one. So this help you to contradict, that's limit of sin x square on the endpoint does not exist, and also it verifies the sixth test. दो मिनट ब्रेक कर लेते हैं, अज़ान हो रही है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो ओके, हाउ टू शो दैट limit extending to 0 1 by x does not exist? Yes, MSc students, हालांकि आप 1 by x का ग्राफ भी जानते हो, तो एक 1 by x का अगर आप देखो 0 प्लस पे क्या हो रहा है और 0 माइनस पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस f of x क्या हो रहा है, 0 plus, it is tending to plus infinity, and limit extending to 0 minus, it is tending to minus infinity. However, routine says that limit should be finite, but before that, from whatever direction you are coming, because we are in R, so to reach any point we have only left hand and right hand limit concept, so both should be equal first and it should be finite. So clearly limit does not exist, limit does not exist. But how to do it using sequential approach, ये तो आप प्लस 2 में पढ़े हो, ये ना प्लस 2 में आप पढ़ के आए हो। How to use using sequential approach? Tell me at which point we need to check limit. लिमिट हमें किस पॉइंट पे चेक करना है? Tell me two sequences xn yn, because we need to take such that xn is converging to 0, yn is converging to 0, but f of xn is not equal to limit f of xn is not equal to limit f of yn. Both are different. 1 by n or 1 by n plus 1.
गुड, 1/n या -1/n ले लो, है ना? लिमिट सेम डिफरेंट आनी चाहिए। हाँ अच्छा, आपने क्या कहा? 0 आ जाएगा ना सर, 1 हाँ सो 1/n और 1/n+1। अच्छा, तो सर n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। अच्छा आप एस्टिमेट कर रहे हो fxn माइनस fyn। एक मिनट, आप क्या सर कहा 1 आपने? बाई ये कहाँ गया पेंसिल? सर एक चले, सीक्वेंस 1/n। रुक जाएंगे। हाँ हाँ, क्या कहा आपने? सीक्वेंस xn क्या ले लें? 1/n 1/n और yn एंड 1/n 1/n प्लस प्लस 1। 1। हाँ, तो ये 0 जा रहा है, ये भी 0 जा रहा है, फिर सर फिर f(xn) हो जाएगा n तो एंड उनकी लिमिट f(yn) हो नहीं तो जाएगा या n+1। नहीं, तो फिर आप ये मत कहो, फिर आप वो कहो एस्टिमेट वाला फिर यूज कर लो कि f(xn माइनस f(yn), आप ये कहना चाह रहे हो। ये जो होगा वो n प्लस ये सर 1। लिमिट नॉट इक्वल टू 0 हाँ यहाँ ये तो ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, नॉट इक्वल टू इज 1, नॉट कन्वर्जिंग नॉट टू इक्वल टू 0। 0 सर। हाँ ये 1 हो जाएगा। आई मीन इफ यू चूज एप्सिलॉन लेस देन 1 देन इट विल फेल, but here using this their limit are becoming same. I mean f at n, f of xn कितना हो जाएगा? ये 1/x है ना, तो ये भी n हो गया, ये भी n हो गया, और दोनों की लिमिट सेम हो जा रही है ना। यहाँ से इस मेथड से कुछ नहीं कह सकते, यहाँ तो दोनों सेम हो जा रहे हैं। समझ आया कि नहीं? एस्टिमेट से तो चलो कह दोगे क्योंकि ये वैल्यू 1 आ जाएगी, और एंड इफ यू चूज एप्सिलॉन लेस देन 1 देन इट विल फेल। लेकिन अभी मैंने एप्सिलॉन वाला मेथड यूज नहीं किया, मैं तो यहाँ सीक्वेंशियल अप्रोच समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि if you choose this sequence xn equal to 1/n and yn equal to, छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो, let xn equal to let an xn yn यहाँ दे दिया नोटेशन, an ले लो 1/n एंड bn इज इक्वल टू -1/n। तो ये तो दिख रहा है आपको क्लियर, ये भी कहाँ जा रहा है? 0, ये भी 0 जा रहा है। बट व्हाट इज f of xn, सॉरी f of n? f of n is n and f of bn is -n. now check their limit, f of n और f of bn की लिमिट कहाँ कहाँ जा रही है? f of n क्या ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n कितना हो जाएगा? आई मीन n ये इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, और यहाँ पे इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? तो देखो दो डिफरेंट लिमिट आ रहे हैं ना, f of n और f of bn की वैल्यू अलग आ गई। hence f of x is equal to, sorry, hence limit x tending to 0, sorry 1/x does not exist। ठीक है, समझ में आ गया? डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से आप आप कर सकते हो इसको। एक आध क्वेश्चन मैं और इस पे करा दूं, फिर हम लोग बैक आ सकते हैं। सो सिमिलरली यू कैन टेक होम असाइनमेंट, यू कैन डू ऑल दिस रिजल्ट, दैट लिमिट extending to say infinity sin x limit extending to infinity cos x does not exist। Similarly, you can construct other function sin x square cos x square, that already I discussed। ठीक है ना, तो इंफिनिटी पे आप केयरफुल रहेंगे। इसी रिजल्ट को मैंने वहां डायरेक्ट यूज कर लिया था। अब चलते हैं, जो सवाल डिस्कस कर रहे थे वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक फंक्शन आपसे सवाल पूछता हूँ। व्हाट अबाउट दिस वन? Two important result I will discuss, but let me write its statement here. Suppose let J be a closed and
bounded interval, then any continuous function, sorry, this already I discussed. तो वही है ना, any continuous function on compact domain is uniformly continuous. सर ये जो कॉम्पैक्ट डोमेन वाला है एक बार समझा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे R के अंडर यूजुअल मेट्रिक है, तो कॉम्पैक्ट implies closed and bounded. However, this is in general not true in metric spaces. I mean, there are closed and bounded set which are not compact if you change the metric. But since R is complete with respect to this usual metric, so here I am talking with respect to this one because in real analysis I am discussing. Okay, so for example, say is fx is equal to sin x continuous, sorry, uniformly continuous on closed interval 0 1. क्या फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है? तो पहले ये बताओ फंक्शन ये sin x कंटिन्यूअस है कि नहीं 0 1 पे? क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पे कंटिन्यूअस है ना, आई मीन क्लोज्ड एंड बाउंडेड है। देखो ये इंटरवल जो आपका है क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, ये जो इंटरवल है, सो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल और कॉम्पैक्ट, ठीक है ना। सो हियर यू विल सी दैट सिंस sin x is continuous on whole closed interval 0 1, so it is going to be uniformly continuous. So answer is yes. But it should be continuous on the is fx is equal to 1 upon x uniformly continuous on closed interval 0 1. So you can see that 1 by x is not defined on 0. तो पहले तो defined होना चाहिए ना, continuous में तो defined already included है ना, so it is not defined at 0. और अगर ओपन इंटरवल ले लोगे तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, तो वहां पे कोई और टेस्ट हम यूज करेंगे, लेकिन ये नहीं यूज करेंगे, हालांकि होता नहीं है ना, नॉट डिफाइंड एट 0. तो पहले ये देखना है कि वो डिफाइंड भी है कि नहीं उसमें। इनफैक्ट आपको कंटिन्यूअस चेक करना है कि डोमेन अगर कॉम्पैक्ट है, पहली बात तो इसका डोमेन नहीं, क्योंकि डोमेन में 0 होना चाहिए ना, 0 नहीं होना चाहिए, और 0 हटा दोगे तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, तो ये रिजल्ट हमसे नहीं यूज कर सकते। हालांकि नहीं होता है, आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने कराया था कि 1 बाई सीक्वेंस चूज कर लेंगे और दिखा देंगे कि an bn तो 0 क्लोज है, लेकिन f of n माइनस f of bn 0 क्लोज नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि वो ग्राफ आप देखोगे तो जब आप ये इस तरह आता है ग्राफ, और जब an bn 0 के बहुत क्लोज लोगे, लेकिन ये जो वर्टिकल डिफरेंस है ना, जो एस्टिमेट आता है f of n माइनस, ये आपका 0 की तरफ नहीं जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, इस वजह से नहीं होता। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, अब आप लोग इसको ट्राई करें। तो फिर क्वेश्चन ये है, is fx is equal to mod of sin x upon x uniformly continuous on say sorry open interval 0 1. पहले ये बताओ डिफाइंड है कि नहीं sin mod sin x by x? Yes, anyone?
पहले तो डिफाइंड x इक्वल टू 0 भी फंक्शन डिफाइंड है, 0 हमारे डोमेन में है नहीं, जो दे रखा आपको ये 0 यहाँ पे है नहीं। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड कर लो। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो जैसे ही ओपन इंटरवल 0 1 है ना, तो आप रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हो। क्या होगा? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। सर होगा लगता है, क्यों होगा? क्योंकि जीरो के जब हम হচ্ছে जीरो प्लस की जब जीरो माइनस की हम হচ্ছে जब लिमिट बार करेंगे तो वो तो साइन मॉड साइन एक्स तो पॉजिटिव साइन एक्स हो जाएगा, तो फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, मॉड साइन एक्स का क्या ग्राफ होता है? मॉड साइन एक्स का ग्राफ वही होता है जो पाई, वो नीचे वाला पर्सन ऊपर चल जाएगा, जो जीरो से हाँ पाई से ठीक है, लेके उधर चल जाएगा। हाँ 0 से 2 पाई हो गया, ये पाई हो गया, 1 कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, हाँ वो पाई से और फिर काबुल ऊपर उठ जाएगा, हाँ उसका इमेज नीचे वाला ऑप्शन ऊपर हो जाएगा, पाई से 2 पाई फिर हाँ हो जाएगा। ठीक है, 1 रेडियन में इसको चेंज इसको करेंगे। 1 कहाँ आएगा? पाई बाई 2 से पहले होगा ना? हाँ 1 पाई बाई 2 के पहले हाँ, होगा 3.14। तो ये तो ऑलरेडी हाँ इस इंटरवल में पॉजिटिव है। तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये मॉड साइन एक्स मीनिंगलेस है। बेसिकली आपको हाँ करना क्या है वो यहाँ पे? यू नीड टू चेक ओनली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 0 प्लस एंड 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स। आपको ये दो चीज चेक करनी, कितना कितना होगा लिमिट? पहले वाला 1 हो जाएगा, दूसरे वाला साइन 1 बाई 1 हो जाएगा। So both are finite, hence uniformly continuous. ठीक है, ठीक है, सही जवाब। What about this one? Second question. Let is fx is equal to 1 upon x plus 1 cos of x square uniformly continuous on 0 to infinity। चलिए चेक करें, कॉपी निकाले, आप लोग करके बताएं मुझे तो फिर मैं बताऊं। क्वेश्चन इज fx equal to 1 upon x plus 1 cos of x square uniformly continuous on 0 to infinity। कौन सा टेस्ट लगाएंगे? अगर आप सिर्फ इस रिजल्ट की बात करें, सिर्फ आप इन्फिनिटी पे लिमिट चेक करो, अगर इन्फिनिटी पे लिमिट मिल गई तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखो एक तो ये रिजल्ट हम लोगों ने किया था ना यहाँ पे, ये जो रिजल्ट हमने यहाँ किया था, अगर आप ये जो रिजल्ट लिखा था, इफ f is continuous on this interval and limit at infinity exist, then function is uniformly continuous. But if limit does not exist, then you have to apply some other test. We cannot interpret from here. So just check limit first. What about limit extending to infinity cos 1 upon x plus 1 cos of x ये square? ये जीरो हो जाएगा सर, सेंडूस इन्फिनिटी पे जब भी क्योंकि प्रॉब्लम करना cos हो x की क्या वो लिमिट तो आएगी ये फाइनाइट? जीरो आ जाएगा, क्योंकि हाँ फाइनाइट आएगा, लिमिट जीरो आएगा, क्योंकि cos x की वैल्यू -1 के लेके +1 और फिर हम 1 बाई See, this function is defined everywhere. Look here. Clearly see, this function is not defined. Fx is not defined at x equal to -1, but -1 is not in 0 to infinity, hence fx is defined on 0 to infinity। ठीक है ना? In fact it is continuous,
The only problem is that by previous result we need to check limit at infinity. So limit x tending to infinity 1 upon x plus 1 cos of x square. Now here this cos of x square, actually minus 1 is less than equal to cos of x square is less than equal to 1. So this will be also, this is basically limit extending to infinity, finite number upon 0, finite number upon infinity. So basically that is 0. So 0 means finite, and already this is defined at 0, so its limit is already there. This implies fx is equal to 1 upon x plus 1 cos of x square is uniformly, because limit exists at endpoint. Just wait. Uniformly continuous or uniformly continuous, because limit at endpoint exists finitely. And what about this one? Limit extending to 0 1 upon, चलो इसको भी लिख देता हूँ 1 plus x cos of x square. ये तो दिख रहा है 1 upon 0 plus h रखोगे यहाँ पे, या 0 पे देख लो तो वही ये 1 हो गया, और cos of 0 1 आ गया. So both limit exist finitely, hence function is uniformly continuous. है ठीक. अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, उसे वर्क करें. देखिए what about fx equal to 10x? On say 0 to pi by 2. Check uniform continuity and tell me what are the logic involved. क्या क्या यूज करेंगे? एक तो देखो 10x क्या है, ओपन इंटरवल है ना, ओपन बाउंडेड इंटरवल है, तो सिंपली क्या चेक करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 10x और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सॉरी एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस 10x, कितना कितना आएगा? ये तो दिख रहा आंसर, आंसर इज यस, इट्स यूनिफॉर्मली कन्वर्ट. हाउ? पाई बाई 2 पे लिमिट कितनी होती है इसकी? कौन से यू टेस्ट से निकालेंगे? क्या क्या लिमिट कॉन्सेप्ट से कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा? इनफैक्ट सॉरी, ये तो क्लियर कट दिख रहा है. जब आप पाई बाई 2 की तरफ जाओगे, पाई बाई 2 की तरफ, आई मीन चूज x1 x2 क्लोज टू पाई बाई 2, चूज x1 क्लोज टू x2 क्लोज टू पाई बाई 2, देन क्लियरली द एस्टिमेट f of x1 माइनस f of x2, देखो हालांकि डायग्राम से दिख रहा है, इज नॉट कन्वर्जिंग टू 0. x1 x2 वेरी क्लोज टू पाई बाई 2, ठीक है. और वैसे भी देखो एंड पॉइंट पे लिमिट, ये तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है ना, तो 10 एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस 10x क्या जाता है? प्लस इंफिनिटी, ग्राफ से दिख रहा है. सो लिमिट नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली. 0 प्लस पे तो ठीक है 0 हो जाएगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, और रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ है तो यहाँ से डायरेक्टली डिस्कार्ड हो गया, लिमिट नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली. Hence answer is no, not uniformly continuous. Or from the graph, not uniformly. Anyway, ठीक है ना. Second question. What about? So this is not uniformly continuous on this one. Now what about any bounded interval? Any other interval, say fx equal to 10x on, तो ऑब्वियसली जब उसके सबसेट पे नहीं तो पूरे आर पे तो नहीं होगा वैसे ही, क्योंकि आर पे तो कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो आर पे तो ऐसे ही फेल कर जाएगा. नाउ ऑन 0 to pi by 2 minus some fixed quantity a, where 0 is less than a is less than 1. What about this one? जैसे मान लो ये फंक्शन है ना,
ये जीरो हो गया, यहाँ π/2, ये π/2 कहीं है और π/2 में से एक घटा दिया, π/2 माइनस ए, तो यहाँ पे फंक्शन क्लियरली कंटिन्यूअस है, लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही, ग्राफ से दिख रहा है। यहाँ पे बेसिकली एसिम्प्टोट की तरह काम कर रहा था ना, ये जो π/2 है, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन π/2 से जो y एक्सिस के पैरेलल, ये एसिम्प्टोट का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो π/2 टेंडिंग टू π/2, ये ग्राफ प्लस इंफिनिटी को जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो जैसे ही π/2 माइनस सम फिक्स रियल नंबर a होगा, सो लिमिट विल एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट एंड एट 0 ऑलरेडी लिमिट इज 0, सो क्लियरली फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ में आ गया? So answer is yes. Why? Because limit at x tending to 0, tan x equal to 0, and also limit at x tending to π/2 minus a is full minus tan x exist. Hence uniformly continuous. ठीक है ना। तो π/2 नहीं, लेकिन π/2 में से अगर कोई आप रियल नंबर घटाएंगे तो फंक्शन क्लियरली दिख रहा है वहां क्या है, कंटिन्यूअस। अब या आप ऐसे करो, इफ यू चूज x1 x2 क्लोज टू दिस वन, then clearly this one is then fx1 minus fx2 is tending to 0. ठीक है। now next question. Okay, what about fx is equal to e to the power say 3 minus x minus x square on open interval 0 1. बस सब वहाँ याद करेंगे। हाँ घर पे था, on open interval निकला 0 था 1. आज, निकला था क्या, निकला क्या था आज सेट में पढ़ा था बैठ के। Is this uniformly continuous? Check uniform continuity of this function on 0 1. क्या कहेंगे इसके बारे में? ये ओपन इंटरवल है ना और फाइनाइट लेंथ है, तो सिर्फ एंड पॉइंट पे आप चेक कर लो, वहां से मिल जाएगा। सो व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस fx, टेल मी, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x, कितना कितना आएगा? जीरो प्लस, तो 0 प्लस में यहाँ पे क्या रखोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, सॉरी, okay, you can write here e to the power 3 minus x square is equal to limit extending to 0 e to the power 3 minus 0 plus h minus 0 plus h whole square, ये लिखेंगे। तो जब h को 0 टेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, e क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 0 पे सारे टर्म खत्म हो जाएंगे, तो ये फाइनाइट आ गया, and what about limit extending to 1 minus, so this is limit extending to 0 and replace everywhere x by 1 minus h, so it will be e to the power 3 minus 1 minus h minus 1 minus h whole square, कितना आ जाएगा? h टेंडिंग टू 0 पे क्या हो जाएगा, ये h टेंडिंग टू 0 और यहाँ क्या आ जाएगा? e, so hence this implies fx is uniformly continuous on open interval 0. ठीक है। now what about this one, is fx is equal to e to the power 3 minus x square uniformly continuous on 0 to infinity, इस पे क्या कहेंगे, 0 to infinity पे कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो मैंने करके बता दिया, इसमें क्या करेंगे, अनबाउंडेड इंटरवल है तो 0 पे तो क्लियरली डिफाइंड है, ये इन्फिनिटी पे लिमिट चेक कर लें,
क्या होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी? मुझे बता लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी e टू द पावर 3 माइनस x स्क्वायर क्या होगा? 0 तो लिख सकते हैं ना e टू द पावर 3 इंटू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी e क्यूब अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? फाइनाइट अपॉन जीरो, फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, सो बोथ एट बोथ एंड पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, एंड व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0? e to the power 3 minus x square. So once you put x equals 0, you get a cube. So limit exists finitely. Limit exists finitely. This implies uniform continuous. ठीक है ना? क्या होगा uniformly continuous? Now let us do some questions from इंटरवल करते थे तो पूरे आर पर हो जाए तो हाँ क्या कह रहे हैं? माइनस इंफिनिटी टू 0, हाँ उस पे उसी तरह चेक हो जाएगा। इंटरवल जो है माइनस इन्फिनिटी टू 0 पे भी करेंगे तो लिमिट माइनस इन्फिनिटी पे, हाँ उस पे भी फाइनाइट हो जाएगा ना, क्योंकि ये e क्यूब अपॉन मान लो यहाँ माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, वहां पे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आएगा तो दोनों 0। सो ऑन होल आर, इनफैक्ट यू कैन से ऑन होल आर इट इज, यस ऑन होल आर इट इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। तो जब भी ओपन इंटरवल दे रखा है ना, पहले आप लिमिट पॉइंटिंग लिमिट वाला ही कॉन्सेप्ट यूज किया कर एग्जाम में, ठीक है? ओके, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग functions are uniformly continuous? On open interval 0 1. ऑप्शन ए 1 by x ये आया हुआ क्वेश्चन है, बी sin 1 by x, सी x sin 1 by x एंड डी sin x by x। इज आर है ना, इज आर, तो एक से ज्यादा भी आंसर करेक्ट हो सकते हैं। और ये आया हुआ क्वेश्चन है नेट का। तो चलिए, तो इसमें से ज्यादातर केसेस तो मैंने आपको करा दिया डिस्कशन, पहला वाला क्यों नहीं होगा? Why this is this ऑप्शन ए करेक्ट? क्या ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है? अच्छा, यहाँ ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल पे तो आप लिमिट भी देख सकते हो ना, ओपन इंटरवल पे तो डायरेक्टली आप लिमिट देख सकते हो, सबसे आसान होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में है, वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन आप ओपन इंटरवल पे डायरेक्टली क्या बताओ, वो तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट फाइनाइट लेंथ इंटरवल है, फाइनाइट लेंथ इंटरवल, सो यू कैन डायरेक्टली यूज द प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट लेंथ इंटरवल, ओपन फाइनाइट लेंथ इंटरवल, तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। तो पहले वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 1 by x does not exist, sorry 1 by x does not exist, so same reason sin 1 by x, again this is not true because limit extending to 0 sin 1 by x है ना। अभी सीक्वेंशियल अप्रोच से बताइए तो पहले लिमिट ही नहीं मिलेगी एंड पॉइंट पे 0 प्लस, तो रिजल्ट क्या कहता है कि अगर दोनों एंड पॉइंट ओपन और फाइनाइट लेंथ इंटरवल है और दोनों एंड पॉइंट पे लिमिट फाइनाइट है, तब कहते हैं कि फंक्शन क्या है? यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। तो अगर किसी एक पे भी फेल कर गया तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं होगा। नाउ व्हाट अबाउट x sin 1 by x? देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यस एग्जिस्ट हो जाएगी इसका लिमिट, तो प्लस x sin 1 by x, तो ये 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी,
क्या कर देगा, 0 है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। 1 पे तो दिख रही है क्लियर कट 1 है, लेकिन x sin 1 by x का 0 आ गया, तो ये तो ठीक है। व्हाट अबाउट sin x by x, d वाले Yes, में, sir, यस x टेंडिंग टू 0 sin x by x क्या होता है, 1 1 होता है, इस पर एग्जिस्ट होता sin x by x 1 हो गया, ठीक है। और 1 पे तो दिख ही रहा है इसका लिमिट क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस sin x by x क्या हो जाएगा 1। सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन को करें। एक क्वेश्चन और कर दे तो फिर एंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सपोज f is a function from open interval 0 1 to r, be continuous, now pick out the statement which implies that f is uniformly continuous, that f is uniformly continuous। तो पहला स्टेटमेंट इसमें ये था, ये एनवीएचएम का आया हुआ क्वेश्चन है, fx minus f of y is less than equal to under root mod of x minus y for every xy belonging to open interval 0 1। सेकेंड पार्ट है इसमें, सेकेंड पार्ट, सपोज f of 1 by x converges to half and f of 1 by x square converges to 1 by 4 if function is such that it is at 1 by x it is converging to 1 by 2 and if it is a function of 1 by x square then it is converging to 1 by, then what can we conclude about fx, whether it is uniformly continuous or not. And third, f of x is equal to root x into sin 1 by x cube। तो ये बताना है कि क्या करना है इनके। देखो पहले में तो क्लियर है, वो तो आपको क्या एस्टिमेट डेफिनेशन दे रखा है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या होता है कि whenever x1 is close to x2 or x is close to y, whenever x is close to y, that is mod of x minus y is less than delta, then for every epsilon greater than 0 the estimate fx minus fy should be less than epsilon. So that is already true here, because once you assume that mod of x minus y less than delta, then here we need mod of x minus y, if mod fx minus fy less than epsilon, so that you can easily, because how to, and here we need epsilon, so how to do it, you can assume this one as delta, so under root delta, clearly under root delta is equal to epsilon, so delta equal to epsilon square, so you whatever epsilon you will take, this delta will work, and clearly you can see that if delta is tending to 0 and delta is depending on epsilon, epsilon is depending on delta, so epsilon this is also tending to 0, so whenever x is close to y, so fx is going to close to fy, so that condition is already fulfilled here, so this implies that first is uniformly continuous. Now what about second के बारे में क्या कहेंगे सर? यस सर, ये भी हो जाएगा सीक्वेंशियल होगा कि नहीं होगा? सीक्वेंशियल अप्रोच से हो जाएगा सर। ये सीक्वेंशियल अप्रोच से ये नहीं होगा यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। कोई कुछ लॉजिक बताएं क्या कैसे होगा? एक तो दिख रहा है कि मतलब ये दो अलग अलग लिमिट पे जा रही है। नहीं होगा सर, तो एक कोई ऐसा पॉइंट लो, क्योंकि सीक्वेंस हम ले सकते हैं ना, दो सीक्वेंस की 1/n और एक सीक्वेंस 1/n और 1/n स्क्वायर, ये तो सीक्वेंस टाइप में रहेगा, तो ये तो 0 में जाएगा, आप लेकिन मतलब इसका फंक्शन का 1/n जो सीक्वेंस लेंगे तो वो 0 पे, अच्छा 0
जीरो पे चेक करना चाह रहे हैं, कहीं भी चेक सर कर ये सकते फंक्शन की हाँ, वैल्यू yes, दे sir, रखी है, हाँ फंक्शन की वैल्यू है ये, तो यही कन्वर्ज फंक्शन कर रही है, वैल्यूज। ये फंक्शन कन्वर्ज कर रही है ना 1/2 पे। सर 1/x सीक्वेंस होगी इसमें, तो दोनों सीक्वेंस हाँ, तो जीरो x पर इक्वल टू टेंड कर रही है और फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है, तो ये तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। नहीं ऐसा करो ना, ये 1/x और यहाँ 1/x स्क्वायर है, तो जैसे आप कुछ भी ले लो, 1 पे चेक कर लो या 0 पे कुछ ऐसा सीक्वेंस बनाओ, दिखा दो कि एक्चुअल में पहले लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए क्या कंडीशन है, पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, तो यहाँ ये 1/x है और यहाँ ये 1/x स्क्वायर है, तो मान लो कोई अगर ऐसा सीक्वेंस चूज, नहीं हाँ कोई अगर ऐसा सीक्वेंस चूज करो जो कि इस डोमेन से बनाओ सीक्वेंस किसी एक सर- पॉइंट, और ये दिखा दो कि वो सीक्वेंस जो है सर कॉम्प्लेक्स में सर कुछ भी ले लो, जैसे 1/n 1/n सर कॉम्प्लेक्स का रिजल्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का कौन सा रिजल्ट, आइडेंटिटी फंक्शन वाला सर, हाँ क्या आइडेंटिटी क्या फंक्शन कहता है वो, वाला। क्या कहता सर है, अगर 1/x का हम अगर लिमिट 1/x की अगर हम लिमिट लेते हैं तो सर डोमेन जो हमारी 0 1 दे रखी है, तो हाँ 0 जो है इंक्लूड नहीं होगा सर, इंक्लूड नहीं है डोमेन के अंदर, हाँ बट इसका लिमिट पॉइंट जो है सर 1/x का सर 0 जाएगा। हम्म। नहीं पहली बात ये देखो, देखो अब फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है ना, फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दे रखा है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, इसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, तो इस पॉइंट इस डोमेन के हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, जो आपका डोमेन दे रखा है कंटिन्यूअस देने क्या मतलब, अब वो पॉइंट चाहे आप सिक्वेंशियल अप्रोच से आप अप्रोच करो या आप आई मीन इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन फंक्शन शुड बी लिमिट शुड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट, कंटिन्यूअस फंक्शन की तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा जैसे आप इस तरह के सीक्वेंस ले रहे हो 1/n टाइप की, तो ये 1/n ये 1/n क्या होगा, 0 कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पे, और ये 1/n स्क्वायर, लेकिन क्लियर कट यहाँ से दिख रहा है ये दोनों 0 को जा रहा है, और 0 प्लस आई मीन 1/n स्क्वायर से जाएगा, तो ये 0 के राइट में, अगर आप 0 के राइट में बात करो तो फंक्शन की वैल्यू जो है इस पे अलग अलग है, क्योंकि ये क्या कहता है कि 1/n टाइप का अगर फंक्शन है, 1/n का फंक्शन है, तो f एट 1/n कहाँ जा रहा है, हाफ पे, और f एट 1/n स्क्वायर कहाँ जा रहा है, ये 1/4 पे, और क्या कंडीशन है, अगर आपका ये डोमेन अगर ओपन इंटरवल है और बाउंडेड है, तो लिमिट एट 0 प्लस एंड लिमिट एट 1 माइनस बोथ एग्जिस्ट फाइनेटली एंड द रिजल्ट इज इफ एंड ओनली इफ, तो हमने क्या किया कि 0 पे दिखा दिया कि 0 को कन्वर्ज करने वाली ये दो सीक्वेंस चूज करिए, xn और yn दो सीक्वेंस चूज किए 0 को कन्वर्ज करने वाले, लेकिन जिसपे फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो गई, तो फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होते ही लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx डज नॉट एग्जिस्ट, यहां से क्या कंक्लूड हो गया कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि एग्जिस्टेंस के लिए पहले तो ये है ना कि आप उस पॉइंट को किसी भी सीक्वेंशियल सीक्वेंस से अप्रोच करो, फंक्शन की वैल्यू सेम लिमिट को जानी चाहिए, तो अगर एक भी ऐसे दो सीक्वेंस मिल गए जिसपे लिमिट की तो सीक्वेंस सेम जा रही है, लेकिन फंक्शन की उस पे वैल्यू अगर डिफरेंट जा रही है, तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये सीक्वेंस का कंस्ट्रक्शन हो गया, और किसी ओपन और ये बाउंड ओपन और बाउंडेड इंटरवल है, ओपन और बाउंडेड है, और ओपन बाउंडेड पे अगर किसी एक पॉइंट पे भी लिमिट कंडीशन फेल कर गया तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा, इस वजह से ऑप्शन हट जाएगा। बस समझ में आई, एक्चुअल में आपने कॉशी क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे प्रैक्टिस नहीं की है ना, चलो मैं अभी लिमिट जब बताऊंगा तो वहां पे इसका और डिटेल बता दूंगा, अब क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डायरेक्ट शुरू किया तो इसलिए यहाँ लिख दिया। व्हाट अबाउट थर्ड, थर्ड के बारे में क्या कहेंगे, ओपन बाउंडेड है ना, तो 0 पे लिमिट चेक कर लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस √x इंटू साइन 1/x³, 1 पे तो क्लियर कट इसकी लिमिट साइन 1 है, व्हाट अबाउट √x, अगेन ये क्या है, इसको लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रूट ऑफ 0 प्लस h इंटू साइन ऑफ 1/0 प्लस h होल क्यूब,
तो ये तो sin 1/h क्यूब, इसकी लिमिट तो 1 और -1 के बीच में होगी ना। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 0 into a finite number, 0 into finite number is 0, so limit exists finitely, limit exists finitely at both endpoints. This implies uniformly continuous on open interval 0, 1. हो गया, समझ में आ गया ये चीज? सर फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर दिए सर, अगर हम इसको लिप्सिस कंडीशन से यूज करें तो कैसे करेंगे सर? क्या फर्स्ट कौन सा वाले कंडीशन? में फर्स्ट तो क्लियर का डेफिनेशन है ना। देखो हम लेके क्या चलते सर हैं, हम लिप्सिस लिप्सिस कंडीशन क्यों लगाएं? अच्छा लिप्सिस यहाँ ये वन आप उस फॉर्म, लेकिन लिप्सिस के फॉर्मेट में 1 डॉट आई मीन k ऑफ x माइनस वाई इस फॉर्मेट में लाते हैं ना। तो ये इस फॉर्मेट में आप कहाँ ले आओ, लिप्सिस क्यों लगा रहे हो आप यहाँ पे? ये तो सिंपली डेफिनेशन क्या कहता है कि whenever x1 is close to x2 और whenever x is close to y then fx should be close to fy। हमने दिखा दिया when x is close to y means mathematically x minus y less than delta, so we need to show that fx minus fy less than epsilon, I mean this should be close। तो यहाँ से देखो यहाँ आना तो चाहिए था, यहाँ दे रखा है डेल्टा, एक्चुअली यहाँ क्या, यहाँ आना चाहिए एप्सिलॉन। तो इस एप्सिलॉन को ये अंडर रूट डेल्टा, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस वाई जब ये लेस देन डेल्टा होगा तो यहाँ पे इससे कंपेयर कर लिया, सो एप्सिलॉन डेल्टा में रिलेशन आ गया। अब आपको शो क्या करना है, व्हेन x इज क्लोज टू y सो fx शुड बी क्लोज टू fy। तो x इज क्लोज टू y मींस डेल्टा इज टेंडिंग टू 0, तभी क्लोज होगा, एंड डेल्टा इज रिलेटेड टू एप्सिलॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो यू कैन से दैट if delta goes to 0 then epsilon goes to 0, so fx is close to fy, so clearly it is this, and already it's continuous, so clearly it is uniformly continuous। यही तो शो करना है ना। और तीसरे वाले में क्या होगा, 0 into infinity, 0 into a finite number is always 0, 0 into anything is not 0, but 0 into a defined quantity is always 0, 0 into infinity one defined form हो जाएगा, but 0 into any finite form is always 0। आगे समझ में ये चीज, ये पहले का एक्सप्लेनेशन मेरा पहला लेक्चर देखना, वहां मैंने बताया है, आपने पहला लेक्चर हो सकता है मिस किया, वहां पे मैंने इस तरह कोई क्वेश्चन कराया समझाया है ना। यही तो आपको शो करना होता है, जब x इज क्लोज टू y तो fx माइनस fy का भी एस्टिमेट 0 को जाना चाहिए। और लिप्सिस की बात तब करते हैं ना, अगर लिप्सिस होता तो हम कह देते कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, लेकिन लिप्सिस के लिए उस फॉर्म में होना चाहिए ना, ये आपको ये दिखाना होगा कि fx माइनस fy इज लेस देन इक्वल टू मॉड लेस देन इक्वल टू some k times mod of x minus y and this k should be finite। तो इस फॉर्मेट में अगर ले आओ तब आप शो करेंगे, लेकिन यहाँ वो कहाँ आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रखा है? तो ले आ सकता है ना सर, उसको तो बना सकते हैं, क्योंकि रूट ओवर मॉड x माइनस y को हम लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y लिख सकते हैं, तो k इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा तो आप क्या कह रहे हैं fx माइनस fy, आप ये कहना चाह रहे हो when x is not equal to y, ये चीज लाना चाह रहे हो? यहाँ पे हाफ होगा ना, देखो नहीं सर, वो जो फर्स्ट इक्वेशन है fx, लिप्सिस का मतलब क्या होता है? लिप्सिस डेरिवेटिव बाउंडेड होगा ना, लिप्सिस में डेरिवेटिव बाउंडेड होता है ना, एक x डेरिवेटिव बाउंडेड होता है। तो यहाँ ये क्या हो गया, x माइनस वाई टू दी पावर फिर माइनस हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो एक्चुअल हाफ था और यहाँ से 1 यूनिट आप पीछे लाओगे तो ये डेरिवेटिव बनेगा, 1 यहाँ पे हाफ है, तो अगर यहाँ से आप इसको यहाँ पे 1 जोड़ दो और 1 घटा दो आप, फिर यहाँ पे ये हाफ माइनस 1 मतलब इधर माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हाफ मतलब ये नीचे चला जाएगा। तो अब ये लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जब x y के क्लोज होगा तो ये इन्फिनिटी को चला जाएगा, तो आपका fx माइनस fy जो है ये उस बन ही नहीं रहा ना, डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं बन रहा ये, तो लिप्सिस से नहीं करते। देखो सुनो मेरी बात, लिप्सिस अगर होगा तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑलवेज होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो लेकिन लिप्सिस ना हो। Ellipsis will always imply uniform continuity, but uniform continuous function need not be ellipsis। आपको एक एग्जांपल स्टार्टिंग के लेक्चर में fx इक्वल टू रूट एक्स कराया था मैंने, fx इक्वल टू रूट एक्स ऑन ओपन इंटरवल 0 1। दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बट नॉट ellipsis, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है f डैश x कितना आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, एंड व्हेन यू स्टार्ट टेंडिंग टू 0 देन दिस विल स्टार्ट टेंडिंग टू इंफिनिटी,
So this is not ellipsis. So if ellipsis function always implies uniform continuous, but there are functions which are uniformly continuous but not ellipsis. So for that, remember this result fx equal to root x. आगे समझ में? यस सर। ठीक है, तो आज का यही क्लोज करते हैं। 1 या 2 दिन बाद मैं अल्टरनेट क्लास लूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा, बीच बीच में शाम में 1-1.5 घंटे ऐसे घर से, ठीक है ना। जो भी थोड़ा डिस्कशन हो जाए तो बेहतर ही रहेगा, जो जिन लोग इन्वॉल्व रहेंगे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं हो सकता है थोड़ा सा एलिप्सिस करा के मैं वो फंक्शन का पहले ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म करा दूं, उसके बाद हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, ठीक है, चलो।